ટેક્સ્ટ બુક આવી ગઈ હોય તો ચિંતા નથી, ન આવી હોય તો લઈ લેવાની છે. બરાબર છે. હા મેમ, લેવાની કેટલા છે. ટાઈમ ની આવી ગઈ છે. હમ મળતી હોય, અવેલેબલ હોય બુક સ્ટોલમાં તો લઈ લેવાની બેટા. સમીર મેમ બુક બધા સ્ટોલ સબ્જેક્ટ નથી તો. અવેલેબલ છે હવે તો. મેં તો બધી લઈ લીધી. હા વેરી મેમ, હું ગુડ. બી લઈ આવી મેમ બધી. મારી પાસે જ મેમ છે. મારી પાસે છે બધી છે. ઓકે ચાલો, હવે બધી વાત બાજુ પર મૂકીએ. આપણે આપણું લેસન નંબર 6 જે છે એ શરૂ કરીએ છીએ. એનું નામ છે ભરત. તો અહિયાં આપણને એક બહુ સરસ ભરત નામના પાત્રની એક સરસ એવી કહાની આપણને આપેલી છે. જે અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ છે નાટક જે છે કાલિદાસે લખેલું છે. તો એના નાટકો અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ માંથી આપણને કિસ્સો લેવામાં આવ્યો છે ને એ આપણને અહીંયા પાઠ તરીકે પ્રસ્તુત કરેલો છે. તો આ ભરત નામનું છે પાત્ર, યાની કે એ ભરત નામનો જે છોકરો છે ને એ કોણ છે તમને બધાને ખબર છે? હલો. નહીં મેમ. એ દુષ્યંત નો રાય મેમ. છે. દુષ્યંત અને શકુંતલા નો પુત્ર છે. પણ એની ખબર દુષ્યંત રાજાને હોતી નથી. કારણ કે દુષ્યંત રાજા એ એની પત્નીને ઘણા સમય પેલા એનો ત્યાગ કરી દીધો હોય છે, એને છોડી દીધી હોય છે. અને પછી એ જે એનું બાળક હોય જે એની પત્ની જે હોય છે એને આ દુષ્યંતનું બાળક લઈને તે વનમાં ચલી જાય છે. એટલે એ એને ઓળખતો હોતો નથી. દુષ્યંત રાજા એના બાળકને ઓળખતો નથી. અને એ પછી શકુંતલા જે છે એ આશ્રમમાં જઈને રહેતી હોય છે. કણવ ઋષિના આશ્રમમાં રહેતી હોય છે. અને ઓચિંતાના જ એક વાર દુષ્યંત રાજા જે છે એ જંગલમાં આ બાળકને મળે છે. પણ તેને ખબર હોતી નથી કે ભરત જે છે આ બાળક જે છે એ મારો પુત્ર છે. અને ભરત જે છે ને એટલો બહાદુર હોય છે ને એટલો હોશિયાર હોય છે, એને કોઈ પણ પ્રાણીઓથી પણ બીક લાગતી નથી. તે સિંહ ના બાળકો હોય ને એને તો આપણે બિલાડીના બચ્ચાને રમાડતા હોય ને એવી રીતે રમાડે છે. અને એને સિંહ ના બચ્ચા હોય ને એને બધાના એ ખુબ જ સારી રીતે એના ફ્રેન્ડની જેમ એની સાથે રહેતો હોય છે. અને એને કેતો હોય છે કે તું તારું મોઢું ખોલ તો મારે તારા દાંત ગણવા છે. એટલે એટલું એ બહાદુર જે છે એ ભરત નામનો બાળક હોય છે. અને એ કોનો પુત્ર હોય છે? દુષ્યંત રાજાનો. અને એની માતાનું નામ શું હોય છે? શકુંતલા. તો શકુંતલા અને દુષ્યંતનો બાળક જે છે એનું નામ ભરત જે છે એની ઉપર આપણને અહિયાં એક કહાની બતાવવામાં આવે છે. તો દુષ્યંત રાજા તેની પત્નીને જયારે છોડી દે છે ત્યારે શકુંતલા જે છે એ વનમાં જઈને કણવ ઋષિના આશ્રમમાં રહેવા લાગે છે. અને ત્યારે પછીની જે સ્ટોરી જે છે અહિયાં આપણને આપેલી છે. તો એમાં 4 પાત્ર બતાવવામાં આવ્યા છે. પેલું પાત્ર જે છે એ બાળક છે. બાળકનું નામ ભરત છે. રાજા જે છે એ દુષ્યંત છે. અને તપસ્વીની પહેલી અને તપસ્વીની दूसरी, यानी कि ये तपस्विनी दोनों जो है वो कैसी कौन है? ये ऋषि की पुत्री है दोनों। તો આ જે લેસન છે એ રાજા લક્ષ્મણસિંહે લખ્યું છે. તેના લેખક કોણ છે? રાજા લક્ષ્મણ સિંહ. 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे, यानी कि बहुत अच्छी तरह जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेट हुआ, यानी कि अनुवाद हुआ। तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। यानी कि कालिदास ने की जे महान कृतियां है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश, इन तीनों को उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया गया था, उन्होंने किया था।
और इन पर उनको पुरस्कार भी मिला हुआ। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है और आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है और उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच जाते हैं और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगते हैं। और वे शायद ये सोचते हैं कि काश ये मेरा पुत्र होता। और दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चलता है कि ये बालक जो है ये उन्हीं का पुत्र है। तो ये जानकर दुष्यंत राजा जो है वो खुशी से झूम उठते हैं। तो चलो देखते हैं इस लेसन को। यह लेसन जो है वह एक नाटक है, यानी कि ये कहानी तो सच्ची है लेकिन इस पर से हम ये पाठ पर से एक नाटक भी बना सकते हैं, यानी कि इसकी हम स्किट भी बना सकते हैं। तो दृश्य पहला शुरू होता है कि एक बालक जो है वो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। यानी कि यदि आपको पता हो तो आश्रम जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? जंगल में होते हैं। तो जंगल में ये जो आश्रम होते हैं उनमें जो रहते हैं उन्हें मुनि कहते हैं, यानी कि साधु मुनि कहते हैं। और उस आश्रम में जो ऋषि रहते हैं, साधु मुनि रहते हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे उनके पहले के जमाने में पाठशालाएं नहीं थी। तो उसके लिए राजा के पुत्र हो या कोई भी हो तो उसे अभ्यास करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता था? वो सब आश्रम में अभ्यास करने के लिए जाते थे, ऋषियों के पास जाते थे। तो यहाँ पर भी ये दो तपस्विनियां हैं, वो एक आश्रम में रहती थी और ये बालक जो है वो भी आश्रम में रहता था। ये बालक और उनकी माता और ये तपस्विनियां सब आश्रम में एक साथ रहते थे। और राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे थे, यानी कि ये जो दुष्यंत राजा जो थे ना वो पेड़ के पीछे छिप कर ये सब देख रहे थे कि बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और तपस्विनियां उसे रोकती है। ये सब कौन देख रहा था? दुष्यंत राजा देख रहे थे। कहाँ से देख रहे थे? पेड़ के पीछे से देख रहे थे। बालक कहता है, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। देखो कितना बहादुर बालक है। हम तो एक कॉकरोच से भी डर जाते हैं। एक कॉकरोच निकलता है तो हम सब उछल कूद कर देते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो ये बालक हाँ तो बहुत ही बहादुर था। यस। अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी कहती है, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को अपने बाल बच्चों के समान रखते हैं और तेरा साहस तो बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक रखा है। सर्वदमन यानी कि सर्व का दमन करने वाला और किसी से न डरने वाला। तो पहली तपस्विनी जो थी वो कहती है इन्हें कि हे अठीला यानी कि जिद्दी बालक, तू इस वन के पशुओं को यानी कि प्राणियों को क्यों सताता, क्यों परेशान करता है? हम तो इन सब पशु प्राणियों को अपने बच्चों की समान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, और तू उसे क्यों परेशान करता है? दुष्यंत मन ही मन में बातें करता है, सोचता है कि उन दोनों की बातें सुनकर वो खुद से कहता है, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है? यानी कि કેમ મને આવું લાગી રહ્યું છે કે આ બાળક છે એની ઉપર મને બહુ જ પ્રેમ આવે છે, વાલ આવે છે.
दूसरी तपस्विनी जो है वो उस बालक से कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेगी। यानी कि वो बालक जो है वो किसके बच्चे को घसीट रहा था? सिंह के बच्चे को घसीट रहा था। तो वो क्या कह रही है उसे कि तू यदि इस बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेगी। बालक कहता है मुस्कुराकर यानी कि हंसकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। ऐसे कह के वो मुंह चिढ़ाता है। આપણે ઘણી વાર કહીએ ને કે હું એનાથી બીતો નથી કે બીતી નથી, એને જે કરવું હોય એ ભલે કરી લે. તો આ બાળક પણ એવું જ કહે છે કે હું શું સિંહણીથી બીવું છું, સિંહણીથી બીવું છું, મને કાંઈ એનો ડર નથી. दुष्यंत राजा आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेज वीर पुत्र तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है. એ દુષ્યંત મનમાં ને મનમાં વિચારી રહ્યા છે કે આ બાળક જે છે ને એ અવશ્ય કોઈ વીર પુરુષનો પુત્ર છે, કારણ કે આનું મુખ જે છે ને એ અગ્નિને સમાન ચમકી રહ્યું છે અને આટલું બહાદુર બાળક જે છે એ કોઈ सामान्य व्यक्ति नो हो सके नहीं. पहली तपस्विनी कहती है, प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी. पहली तपस्विनी क्या कहती है कि हे प्यारे बालक, तो इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी. बालक जो है वो हाथ पसार कर पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है. નાના બાળકોને તમે જોયું હશે, ઘણી વાર આપણે એને કોઈ વસ્તુની લાલચ બતાવીએ ને કે ભાઈ તું આમ ન કરીશ તો હું તને આમ કરી દઈશ, તું અત્યારે આ જીદ કરીને આ વસ્તુ ન લઈશ, હું તને પછી બીજી વસ્તુ અપાવીશ કે રમકડું અપાવીશ. આપણે એવી રીતના એને જયારે સમજાવતા હોઈએ ત્યારે કે છે લાવો પેલા મને આપો. એવી રીતે આ બાળક પણ કહે છે, हाथ पसार कर यानी कि फैला कर कहता है कि पहले तुम मुझे खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है खिलौना. दुष्यंत कहे दूर से, बालक की हथेली में देखकर स्वयं खुद ही अपने आप से ही बातें करता है. हाँ, इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है, यानी कि चक्रवर्ती राजाओना जेवा आना हाथમાં लक्षण છે અને उंगलियों पर अद्भुत सा झाल है. वो हथेली की शोभा तो प्रातः कमल को भी लज्जित कर दे ऐसी है, यानी कि सुबह में खिले हुए कमल को भी लज्जित कर दे ऐसी ऐसी सुंदर उसकी हथेली है. और उसकी उंगलियों में तो कैसी रेखा जाले बनी हुई है. दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे सखी सुमित्रा, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ. दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि हे सखी सुमित्रा, जा तू मेरी मेरी कुटिया में यानी कि मेरे आश्रम की कुटिया है जो मेरा रूम है, वहां पर ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, तो उसे ले आ. पहली तपस्विनी कहती है कि मैं अभी लिए आती हूँ, ऐसा कह के वो जाती है. और बालक बाद में कहते हैं, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा. वो बालक क्या कहता है कि जब तक ये तपस्विनी मिट्टी का मोर लेने के लिए गई है, वो लेकर आए, तब तक मैं सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा. यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर वो बच्चा हंसता है. दुष्यंत कहता है, आप ही आप मन ही मन में बातें करता है. इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है. आह भरकर वह कहता है कि धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं. यानी कि मेला पग લઈને જે બાળકો પોતાના પિતાના ખોળામાં રમતા હોય એ પિતાઓના જીવન જે છે એ ધન્ય છે. મારો પુત્ર પણ નથી અને મારા ખોળામાં કોઈ આવું બેસવા વાળું પણ નથી. અને કેમ જાણે કે મારું મન આ બાળક સાથે રમવા માટે લલચાય છે. એ પોતાના મનમાં અને મનમાં अभी बातों करे छे. कौन बातों करे छे? दुष्यंत राजा. पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं. वो छोटा सा बच्चा जो है वो क्या करता है, वो उसे ये बात कहकर हंसता है. तब उसके
छोटे छोटे दांत जो है वो उसकी शोभा दिखाते हैं, और वह छोटे बच्चे जो है वो तुतले वचन बोलते हैं। कैसे वचन बोलते हैं? તોતરાતા બોલતા હોય, એ લોકોની એકદમ ભાષા જે છે એ ક્લિયર ના હોય। तो बाद में दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात કાન નહીં ધરતા। दूसरी તપસ્વિની છે ને એને ખીજાય છે બાળકને અને કહે છે કે જીદ્દી, તું કેમ મારી વાત સાંભળતો નથી? કાન નહીં ધરવું એટલે સાંભળવું નહીં। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है? એ શું કરવાને દૂસરી તપસ્વીની આવી રીતના વાત કરતી હતી, કારણ કે સિંહના બચ્ચાને મૂકતો નહોતો, એટલા માટે એને ખીજાતી હતી કે તું કેમ જિદ્દી છો, કેમ મારી વાત સાંભળતો નથી? તું આ સિંહના બચ્ચાને છોડી દે। અને આમ તેમ જોઈ અને દૂસરી તપસ્વીની છે ને જોવે છે કે કોઈ અહીંયા મારી મદદ કરવા માટે છે કે જે આની પાસેથી સિંહના બચ્ચાને છોડાવે। इतने में ही वो दुष्यंत को देखती है और कहती है कि हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। શું કહે છે કે હે મહાન આત્મા, તમે અહીંયા આવો અને કૃપા કરીને આ બાળકના હાથમાંથી સિંહના બચ્ચાને છોડાવો। એ કોણ કહે છે? દૂસરી તપસ્વીની જે છે એ રાજા દુષ્યંતને જોઈ જાય છે અને એને કહે છે। दुष्यंत कहते, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर कहते हैं कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती हो? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को तुरंत ही छोड़ दिया। दुष्यंत उस बच्चे के पास जाकर और हंसकर कहता है कि हे ऋषि कुमार, तुमने इस बच्चे को, सिंह के बच्चे को क्यों पकड़ के रखा है, और ये तुमने तपोवन यानी कि आश्रम के विरुद्ध जाकर ये काम क्यों किया? इससे तुम्हारी कुल की लाज जाती है, यानी कि એનાથી તારા પરિવારનું ખરાબ દેખાય છે। तो आ तो कोई सारी बात न कहवाय। तो बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया, और बाद में बच्चा जो है वह सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। देखो यहाँ पर ये तपस्विनी है, ये राजा दुष्यंत है, और ये बच्चा और सिंह का बच्चा है। ચાલો આજે આપણે આટલું લેસન કર્યું છે, સમજ્યું છે ને? તો હવે આપણે આ લેસન ને રીડ કરી લેશું, બરાબર? તો ચાલો, કોણ રીડ કરશે? મેમ હું કરું? કોણ બેટા? सारानी फातिमा। हाँ, ओके। चैप्टर 6 भरत। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनी बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य को आनंद ले रहे हैं। बालक से प्रति सहज आकर्षक से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश ये बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वह खुशी से झूम उठे। पात्र: बालक भरत, राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी। दृश्य:
एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हेठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बात सुनकर स्वयं से, हाँ, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा उमड़ा सा आता है? दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुरा, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौने दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौने दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, हाँ, इसके हाथ में चक्रवर्तिया के लक्षण है। उंगलियां पर कैसे अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुवत्ता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटियों में से ऋषि कुमार के खिलौने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए लिए आती हूँ, जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह से बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनकी अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्र के मुख आकर्ण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी कान तू तू मेरी मेरी बात। बात कान नहीं धरता। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल ही लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? मैम कैन आई रीड? ओके। मैम कैन आई स्टार्ट? हाँ बेटा। लेसन नंबर 6, भारत। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पारसी, बांग्ला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनको अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के
हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि ऋषि कण्व के यस कण्व ऋषि कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत सिंह एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्वियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किए। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनी को बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वह खुशी से झूम उठे। दृश्य एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाते हैं और दोनों तपस्वियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेट की ओट से राजा दुष्यंत बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो बेटा तारो अवाज नहीं संभळातो बराबर। हाँ मैम बेटा तारो अवाज नहीं संभळातो बराबर। आप हाँ હવે આવ્યો બેટા। मैम હવે આવ્યો। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए ला रहा है और दो तपस्वियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेट की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों के सर्वदमन रखा है। सो ठीक है। दुष्यंत उनकी बात सुनकर स्वयं से आह, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी का मुंह, मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाते हैं। मैम कैन यू स्क्रॉल। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक, हाँ, हाथ पसार कर पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से
आह, इसके हाथ हाथ में चक, चक्रीय चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगली पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्राग कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सुखी स्वर्ति, यह बात से मनेगा ना मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी मैम स्क्रॉल टीका मोर। मैम आपने पीछे रह गया वो, आप हाँ बेटा, फिर थोड़े। से मिट्टी। हाँ, मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिया आती हूँ। जाती है। बालक, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसे ललचाता है, आह भरकर। दुष्यंत, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्रों के मुंह आकरण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुलना वचन बोलते हैं। तुतला दूसरी वचन करते हैं। तुतला तुतला वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं भरता। ओके बेटा, चलो अभी हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर पूरा हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, तो यहाँ ओके मैम। हमने आधा लेसन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और आधा लेसन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके, ओके मैम। ચલો બાય બેટા એન્ડ ટેક કેર। અને આ લેસન જે છે ને હજી એકવાર તમે લોકો ટેક્સ્ટ બુક ના કરી લેજો, સરસ રીતે बाय સમજાય। मैम। બાય બેટા, बाय ટેક मैम। કેર, हैव अ બાય। नाइस टेक डे। केयर।